whole world. Today, I seek your indulgence for a little more time because I have right and privilege serving as a senator since 2003. I think only few of us are for that long serving this august house. Let me start. Mr. Chairman, you may have many achievements in your life as a federal minister multiple times, prime minister, and now the chairman. But I recognize you for 3 achievements. As your political opponent, you are inherited grace, humility, and the treatment with all of us in this house is appreciated. The first and the foremost achievement, when you chose conviction against compromise, you stood with your leader, Mr. Asif Ali Zardari, when he needed you the most. And I'm asking all my PTI leaders as well as workers that this is the time that we will accept conviction, disqualification, torture, as I have went through and many of us went through, but we will never compromise on the principle laid down by our great leader Imran Khan. The second achievement, I really appreciate that about a month or 2 months ago, there was a protection order right under our procedure been adopted, but you refused to chair this particular house because you said unless Ejaz Chaudhry will not come under protection order, I will not do that. Today I'm calling again that our opposition leader, Mr. Shivli Faraz, is not here. All I'm asking you and also the Honorable Law Minister that please, we don't have any hurry in getting another opposition leader. Let us sit, wait, let this process go on. Because this august house earnestly needs, the process has to be completed, or the call should come from Imran Khan whether he should be replaced or not. Sir, the third, and I am personally obliged for that, when in 2008 there was financial crunch, I came to you and asked you that we need more investment in NUST. You were gracious enough that you allocated substantial fund for what? In order to set up state-of-the-art incubators, R&D, and they transformed that particular NUST university, not only in Pakistan, but one of the best in the world. आज मैं फिर एक मर्तबा मिस्टर चेयरमैन, ये है वो आइन 1973 का ये आइन, ये उन लोगों ने बनाया है, इसके मूजद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद, जनाब अब्दुल वली खान, गौस बख्श बजिंजो, कसूरी और बहुत सारे हमारे वो अकाबरीन जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। ये आइन उनका दिया हुआ था और जब हम डिबेट को देखते हैं इसके बनाने में जनाब चेयरमैन, तो हम हैरान रहते हैं कि उस वक़्त NWFP इलादगी की तरफ जा रहा था। बलोचिस्तान में बहुत सारी तंजीमें मुल्क को उस हिस्से को बलोचिस्तान को अलग करने के लिए रखी थी, लेकिन दाद देता हूं उनको, अपने उन सारे अकाबरीन को जो मिल बैठे और उन्होंने इस आइन को बनाकर हम पे इतना बड़ा एहसान किया पाकिस्तान में
कि सकूत ढाका के बाद पाकिस्तान जिल्लत और रसवाई की जिंदगी पूरी दुनिया के अंदर अप्रैल 1973 को जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अब्दुल हफीज पीरजादा मनवा ने कबूल किया। उसमें क्या है जनाब, इस 73 के आइन में अदालतों की आज़ादी, पार्लियामेंट की आज़ादी, तमाम जितने इदारे हैं अपने अपने दायरे अख्तियार के अंदर रहकर। और मैं आपको वो वक्त याद दिलाऊं जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कहा कि दिस इज़ ए बेडरॉक, कि तला आजमा, इसके खिलाफ इसको नहीं ख़त्म कर सकेंगे। उसके बाद 2 तला आजमाए और इसकी ईंट से ईंट बचा दी। फिर मैं शाबाश देता हूं मौजूदा हाल के सियासी लीडरों को कि जिन्होंने फिर एक दफ़ा दानिशमंदी की और 18th अमेंडमेंट के ज़रिए वो सारी बुराइयां जो जनरल ज़ियाउल हक और मुशर्रफ के ज़रिए लाई गई थी उसको ख़त्म किया, अदलिया की आज़ादी को बहाल किया, पार्लियामेंट को आज़ाद किया, इलेक्शन कमीशन को आज़ाद किया। आज मुझे कहने दीजिए जनाब चेयरमैन कि इसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी गई हैं। ये सफ़र काजी फाइज ईसा से शुरू होता है, हमसे बेट लिया जाता है, 47 फार्म के तहत असम्बलियों को भरा जाता है और फिर क्या होता है जनाब चेयरमैन, उसके बाद इससे बढ़कर जुल्म क्या कि रिव्यू पिटीशन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टोटल हमारी आबादी, टोटल हमारे मेंबरान 22 थे, उनको 30 सीटें हमारी दी गई। किस्सा यहां पे ख़त्म नहीं हुआ। पार्लिमानी लीडर ने बड़ी वजाहत के साथ ये कहा और मैं उसको एंडोर्स करता हूं कि जिस तरीके से हमें डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, अदालत के जरिए, अदालती अहकाम के जरिए आप लेफ्ट से ये गुजारिश करता हूं कि जवाब दे। और मैं चेयरमैन साहब खासकर आपको ये कहता हूं, 24, 25 और 26 नवंबर को मैं अटक जेल में कैद था। चंद दिन पहले मेरे पास FIR हैं और अब मैं ट्रांजिट बेट लेके आया हूं पेशावर से। उसमें लिखा है कि आज़म सवाती के हाथ में डंडे थे, उसने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है। अगर और कुछ नहीं कर सकते, अगर आपसे अख्तियार लिया गया है तो इस इक़्तिदार को भी लात मारो जनाब चेयरमैन। आपने तो इतना बड़ा फैसला किया कि अपनी प्रीमरशिप जो है एक असूल के लिए कुर्बान की। आज क्या आप ईवान के इस मेंबर की दाद रसी कर सकते हैं? और ये किसी फौजी ने नहीं की। आप, मुझे यकीन है कि यहाँ का जो IG पुलिस है इस्लामाबाद, उसने भी ये नहीं किया होगा। ये मकरूह हरकत किसी DSP SHO ने बुलाएं उनको और उनको कहें कि ये 4 FIR आज़म सवाती के खिलाफ, जबकि वो अटक जेल के अंदर ये गलत बयानी जो है वो कर रहे हैं। यही तमाशा पूरी पाकिस्तान के अंदर है। 104 FIR मेरे खिलाफ हैं जनाब चेयरमैन। 2.5 साल के अंदर 1/3 ऐसा मैंने, मेरी उम्र 17 है, मेरी उम्र 77 साल है। और लेकिन ये एक बात बता दूं, ये कुर्बानियां, ये टार्चर, ये जुल्म, ये जेलें हमें अपनी हकीकी आज़ादी से नहीं रोक सकती। आज मैं इस ईवान की तरफ से
ताकतवरों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, मोदी के खिलाफ आपने बहुत बड़ा महाज कामयाबी से हासिल किया। दुनिया के अंदर इस वक्त आपकी इज्जत हुई, लेकिन पाकिस्तान के लोग चाहते हैं, 90% लोग चाहते हैं, जिनके दिलों पे इमरान खान हुकूमत कर रहा है, कि जब तक आपको अवामी ताईद नहीं हासिल होगी, और अवामी ताईद की कुंजी सिर्फ इमरान खान के पास है। इसलिए खुदारा नाहक जुल्म आखिर जुल्म है, जब हद से बढ़ता है तो मिट जाया करता है। और अदलिया को मैं ये कहना चाहता हूं, ताकतवरों को भी कह रहा हूं कि देखें, जजों के सर के ऊपर लिखा है फहकुम बैनन नास बिल हक। आज नाउज़ बिल्लाह उस अल्लाह ताला के उस हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है कि हमें इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। मैं एक बार फिर उन्हीं ताकतवरों को ये कहता हूं कि आपका साथ चीन का साथ है। शी जिनपिंग को अपने साथ सीसा पलाई दीवार की तरह रखें, इसलिए कि इस खित्ते के अंदर अगर हमने अपना वजूद मोदी के खिलाफ कायम करना है तो फिर अपने टेस्टेड फ्रेंड के ऊपर हमने एतमाद करना होगा। चीन की दोस्ती कराकोरम या सीपेक तक महदूद नहीं, बल्कि उसने हर वक्त ये साबित किया है कि वो हमारा टेस्टेड फ्रेंड है, और उसके ज़रिए से हम अपना वजूद खुदा के फजल से अल्लाह के बाद कायम कर सकते हैं। मैं ये भी कह दूं कि हमें सऊदी अरब को, तुर्की को, यूएई को, इन सारे ममालिक को अपने साथ मिलाना चाहिए, ताकि हम इस मुल्क के अंदर और इस मुल्क के बाहर न सिर्फ अपना